Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We welcome you all for the Leadership Development Program. आप सबका हम स्वागत करते हैं इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। Let us begin this with a word of prayer. हम इस प्रार्थना के साथ इसे शुरुआत करेंगे। Father God, we want to thank you and praise you for this beautiful day. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और आपकी स्तुति करना चाहते हैं इस दिन के लिए। Bless us with your grace, O God. अपने आशीष से, अपने कृपा से हमें आशीषित कीजिए प्रभु। As we meditate your word, जैसे हम आपके वचनों के ऊपर मनन करने वाले हैं, open our eyes, O God, हमारे आंखों को खोलिए प्रभु, so that we will know you more and more. ताकि हम आपको और करीब से जान पाए। And the calling that you have given us, let us experience it in a real manner, O God. और जो बुलावट आपने हमें दी है वो हम और अच्छी तरह से अनुभव कर पाए। Let this time be a time of blessing for each one of ये us. समय हर व्यक्ति के लिए एक आशीष का समय बने। Holy Spirit of God, we commit our body, soul and spirit into your hands. पवित्र आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर, हमारी आत्मा को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। You speak and you minister to your people. आप हमसे बात कीजिए और अपने लोगों से आप बात कीजिए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Okay, the title that we have going to meditate today is again ministry motives. आज का जो शीर्षक है, जिसके ऊपर, जिस वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, वो सेवकाई के मकसद। In that aspect, we are going to talk about the need of the Holy Spirit. उस शीर्षक को लेते हुए हम इस शब्द के ऊपर बात करेंगे, जरूरत पवित्र आत्मा की। We all need Holy Spirit in this life. हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आवश्यकता है इस जीवन में। Many times when we talk about Holy Spirit, बहुत बार जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, people tend to think it is more like a power or a force. तो लोग क्या सोचते हैं, वो कोई ताकत है या कोई एक सामर्थ है। But the Holy Spirit is more than power and force. लेकिन पवित्र आत्मा कोई शक्ति या ताकत से बढ़कर है। He is the person of Godhead. वो एक परमेश्वर में एक व्यक्ति है। He is the third person of the Trinity. वो त्रिज्ञ परमेश्वर का तीसरा जो व्यक्ति है। As we have relationship, we can have relationship with the Holy Spirit. जैसे हम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, वैसे पवित्र आत्मा के साथ संबंध, रिश्ता रख सकते हैं। So we are going to meditate why we need the Holy Spirit in our life. तो आज हम मनन करेंगे कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है हमारे जीवन में। The first thing comes to our mind is पहली चीज जो हमारे मन में आती है, when the transition of the Old Testament to the New Testament, जब पुराने नियम से नए नियम की ओर हम आते there हैं, were 400 years silence. तो 400 सालों की चुप्पी थी। So all they were expecting is a voice in the wilderness. तो एक ही चीज लोग चाहते थे कि वहां से परमेश्वर की आवाज वो सुनेंगे। So he is going to proclaim and prepare the way for the Lord. तो वो व्यक्ति कोई आएगा और प्रभु के रास्ते को खोलेगा। So in between those days there is no prophet. और तभी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया इस्राएल में। The word of God was not available in those days. और परमेश्वर का वचन किसी को भी प्राप्त नहीं होता था उन दिनों में। But after 400 years, John the Baptist was appeared in the wilderness. लेकिन 400 सालों के बाद उस जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा आया। So he was the one who was literally preparing the way for the Lord. तो वो जो था वो रास्ता तैयार कर रहा था प्रभु के लिए। So he told two things mainly about the Messiah. तो उसने दो चीजें मसीह के बारे में बताई। The first thing he said is Jesus Christ is the Lamb of God who is going to take away the sins of this world. पहली चीज उसने बताई कि प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पापों को ले जाएगा। So he is the one who literally revealed Jesus Christ as the Messiah. तो उसने लोगों को बताया या समझाया कि प्रभु यीशु ही मसीह है। After revealing the Messiah, और प्रभु यीशु को लोगों के सामने लाने के बाद the second important thing he emphasizes, दूसरी महत्वपूर्ण चीज उसने लोगों को बताई, this Messiah, Jesus Christ, who is going to baptize you with Holy Spirit and fire. और ये मसीह यीशु आपको बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा और अग्नि के साथ। So if you see all the four gospels, including Acts, it's like 5 books emphasize about the prophecy of John the Baptist. अगर आप
चारों सुसमाचारों को देखोगे और प्रेरितों की पुस्तक को देखोगे तो उसमें बताया गया है इस वचन के बारे में कैसे पवित्र आत्मा का आगमन होगा। So we need to receive the baptism of the Holy तो Spirit. हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। Only when we receive the baptism of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाएंगे that's when we can experience God in abundance. We will be totally immersed in God. तभी हम परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे। The second thing comes to my mind is the last days of Jesus Christ on this earth. और दूसरी बात जो मेरे मन में आती है, जो प्रभु यीशु के जो अंत के दिन थे इस पृथ्वी के ऊपर, But John is revealing it in John chapter 15 and 17. Especially on 16, he is talking about the Holy Spirit. और यूहन्ना के 15वें अध्याय 5वें वचन में, So here, the 15th chapter, he is talking about abiding in Christ. और 15वें अध्याय 5वें वचन में यूहन्ना ये बता रहा है कैसे हमें प्रभु यीशु में बने रहना है। He says, without me, you can do nothing. और वो कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So without Jesus Christ, he is telling the disciples, you won't be able to do anything. प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बता रहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। And immediately in the 16th chapter, he is saying, I'm going to leave you and go. और उसके बाद 16वें अध्याय में वो उन शिष्यों को बता रहा है मैं आपको छोड़ के चल जाने वाला हूँ। Imagine Jesus is telling, without you, you won't be able to do anything. And then the next moment, I won't be with you. सोचिए, कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु ने बता रहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और 16वें अध्याय में वो कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ। The mindset of disciples will be, then what we will be doing? तो उनकी मनस्थिति कैसे होगी कि अभी हम लोग क्या करेंगे? We won't do anything. हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप जा रहे हो। That's when Jesus is telling, तभी यीशु मसीह उन्हें बता रहा if है I don't go, अगर मैं नहीं जाऊं the तो Holy Spirit will not come to you. पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं But if आएगा। I go, लेकिन अगर मैं जाऊं तो I will send him to you. मैं उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। So in this aspect, what we can understand, तो इस चीज में हमें क्या समझ आती है? the first one, Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. इसमें हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु बपतिस्मा देने वाला है पवित्र आत्मा So का। it is not from any other source that we receive the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा किसी और स्तोत्र से नहीं आता। It is the Jesus Christ who was going to give us the Holy Spirit. सिर्फ प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। And then the second thing is, और दूसरी चीज ये है, without God, परमेश्वर के बिना, whether it is Jesus Christ or the Holy Spirit, प्रभु यीशु हो या पवित्र आत्मा हो, we won't be able to do anything. हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। So that's the thing that I want to emphasize again. यही चीज मैं दोहराना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। All we want to do something for God. हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, But one thing we need to realize, without the Holy Spirit, we won't be able to do anything. एक चीज हमें समझना है कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। All our efforts will be in vain. हम जितनी भी कोशिश करेंगे वो सब व्यर्थ चले जाएंगे। So that's why we need the Holy Spirit. इसलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। And the second thing is, it is the promise of the Father. और दूसरी चीज ये है कि वो पिता का एक वादा है। We need to say yes and amen for every promise. और हर वादे के लिए हमें आमेन बोलना है। So here, Luke chapter 24 verse 49, it says, I am sending the promise of my Father. और लूका 24:49 में लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं जो पिता ने वादा किया था, मेरे पिता ने, वो वादा मैं आपको भेज रहा हूं। So you need to be clothed with the power of God. और आपको परमेश्वर की शक्ति के साथ सशक्त होना बहुत जरूरी है। So when Jesus Christ is on the earth itself, he told, I'm going to send the promise of the Father. It is not only Jesus Christ. Even before Jesus Christ revealing it, Father is the one who was promised about the Holy Spirit. और प्रभु यीशु जब इस धरती के पर थे तो प्रभु यीशु ने बताया था कि उस जो वादा पिता ने किया है वो तुम्हें दिया जाएगा। और सिर्फ प्रभु यीशु नहीं, प्रभु यीशु से पहले भी पिता ने ही ये बात बताई थी। And Father is saying they need to be clothed with the power. और पिता कहता है जैसे हम एक कपड़े को पहनते तो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ
को हमारे ऊपर चढ़ाना है। And Jesus Christ, after his resurrection, और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद so he is giving an instruction to the disciples. तभी वो किसी अपने शिष्यों को कुछ बता रहा है। Do not leave Jerusalem, वो बता रहा है कि यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, but wait for the promise of the Father. लेकिन रुके रहो जब तक परमेश्वर पिता का जो वादा तुम में प्राप्त न हो। Here we need to think about it. यहाँ हमें कुछ सोचना The है। greatest message of resurrection, they have experienced it. और सबसे बड़ा जो मैसेज है पुनरुत्थान का, उन्होंने अनुभव किया है। And they have really seen God alive. और उन्होंने देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित खड़े हैं। How he conquered death and grave. कैसे उन्हें मृत्यु के ऊपर विजय पाई। What an excitement it will be कितनी उन्हें खुशी हुई to रही tell to the world that the person you killed is alive. कि वो लोगों को और संसार को बताएंगे जिस व्यक्ति को तुमने मारा वो अभी जीवित खड़ा है। But God is telling there, लेकिन परमेश्वर वहां पे बता रहा do है not leave Jerusalem. तो यरूशलेम को छोड़िए मत, Wait. रुकिए, Wait to receive the Holy Spirit. रुकिए जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे। Imagine the disciples' mindset. सोचो उन शिष्यों की मनोस्थिति कैसे होगी। They would have thought, वो सोचते होंगे how many times we have done ministry? कितने दिनों से हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। We have preached, हमने प्रचार किया, we have delivered. हमने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा Even दिया। Jesus Christ commended our ministry. This I have seen Satan falling like a lightning. और प्रभु यीशु ने भी हमारी वाह की कहकर मैंने देखा कि कैसे शैतान गिर गया। But now why we have to wait? लेकिन अभी हमें क्यों रुकना है। And it's waiting like it's like a 50 days wait. और उन्होंने 50 दिन को रुकने को कहा। So they have to wait for the Holy तो Spirit. 50 दिनों तक क्यों रुकना है कि जाके हम सेवकाई करें। Why we need to wait? हमें क्यों रुकना है पवित्र आत्मा के We लिए। need to be empowered by God. पवित्र परमेश्वर के शक्ति से हमें सशक्त होना है। That's why the disciples are waiting. इसलिए शिष्य चेले रुके हुए So थे। waiting in the presence of God is not wasting. और परमेश्वर की उपस्थिति में रुकना यानी किसी भी हमारा समय व्यर्थ जाना ऐसा नहीं है। That's when we are empowered by God's Spirit. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते तभी हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सशक्त बनते The हैं। more you wait on God, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ऊपर बने रहते the हैं more you will experience Holy Spirit. उतना ज्यादा हम पवित्र आत्मा के अनुभव को पाते हैं। Zechariah says, जकरयाह भविष्यद्वक्ता ये कहता है, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord Almighty. अपनी ताकत से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन अपनी आत्मा से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कहता है। They are building God's temple. और वहां पे हम देखते हैं वो परमेश्वर के मंदिर को बांध रहे हैं। At that point of time, उस समय क्या होता they है, are unable to complete the task. वो उस चीज को नहीं कर पाते। They are trying all their efforts. वो पूरी मेहनत लगा रहे हैं। That's when Zerubbabel comes with the word of prophecy. तभी जेरुब्बाबेल एक भविष्यवाणी लेके आता It है। is not by your might, वो कहता है उनको तुम्हारी ताकत से नहीं, nor by your power, तुम्हारे सामर्थ्य शक्ति से नहीं, but only by the Holy Spirit you will able to achieve it. लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा तुम इस चीज को कर पाओगे। So why we need to wait in Jerusalem? तो हमें यरूशलेम में क्यों रुकना है? Why we need to wait in the presence of God? हमें क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में रुकना है? Because when we do anything without God, क्योंकि परमेश्वर के बिना जब हम कुछ भी चीजें करते हैं, with our might or with our power, nothing will happen. हमारी ताकत से, हमारी शक्ति से तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। So Jesus is the baptizer. तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला The है। Father is the one who has promised us. पिता वो है जिसने हमें वादा किया है। In God, there all the promises are always yes and और amen. परमेश्वर के वादे यस और आमेन होते हैं। So everyone can experience the power of the Holy Spirit or the presence of the Holy तो Spirit. हर कोई पवित्र आत्मा के अनुभव को उस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकता As है। leaders of the church, और इस कलीसिया के अगुवाई होने के नाते at this point of time, इस समय में we need to understand हमें एक बात समझनी the है, importance of the Holy Spirit. महत्व पवित्र आत्मा का।
if we don't have Holy अगर Spirit, हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है I tell you, we won't be able to fulfill the plan of God in our तो life. हम परमेश्वर के बुलावट को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाएंगे। Bible clearly says, even if we have to say Jesus is the Lord, Jesus is Christ, we need the Holy Spirit. बाइबल क्लियरली ये बताता है अगर हमें कहना है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Proclaiming the name of God itself, we need Holy Spirit. अगर हमारे अपने मुंह से अगर हमें ये बोलना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो बाइबल ये कहती है हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। So it is a promise of the Father. तो ये पिता का एक वादा है। And now, okay, life in the Spirit. और दूसरे जो हम लोग देखेंगे वो आत्मा में जीवन। So two aspects we can see about the baptism of the Holy Spirit. दो चीजें हम देख सकते हैं जब हम बपतिस्मा पवित्र आत्मा का पाते It हैं। is the initial stage, it's the infilling of the Holy Spirit. वो जो शुरुआत की जो स्थिति होती है जिसमें पवित्र आत्मा से हम भरे जाते हैं। It is about experience God in a supernatural way. और वो अलौकिक रूप से हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं। So Galatians 5:18, Paul is comparing with a drunkard person with the spiritual person being filled with the Holy Spirit. और गलातियों 5:18 में पौलुस वो कहता है यदि आपका संचलन पवित्र आत्मा से होता हो तो आप व्यवस्था के 5:18. It talks about a person who is drunk. Ephesians 5:18. Yeah, sorry, Ephesians 5:18. It talks about do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. थोड़ी गलती हुई है, वो गलातियों 5:18 नहीं है, एफिसियों 5:18 आपको पढ़ना है। वहां पे लिखा है मदिरा पीकर मतवाले नहीं बने क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। Imagine if somebody is drunk. सोचिए अगर कोई पिया हुआ है So now what will happen? तो क्या होगा? They do things beyond their control. और वो अपनी ताकत वो कुछ भी जो बिना कंट्रोल के बाहर वो करते हैं। I have experienced it. और मैंने अपने जीवन में वो देखा है। Once I was a drunkard. एक बार मैं भी पियक्कड़ था। I have my friends who used to drink. और मेरे मित्र भी मेरे साथ पीते थे। I have seen people who are very shy to speak. और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बोल नहीं पाते, but after drinking, लेकिन दारू पीने के बाद in the middle of the road they'll do march past. वो रास्ते के बीच में खड़े रहकर मार्च पास्ट करते हैं। It is they are controlled by that alcohol. वो दारू उनके ऊपर हावी होती है। They do things which normally they don't do. और जो चीजें वो हर दिन नहीं कर पाते, दारू पीने के बाद वो सारी चीजें कर लेते हैं। Here Paul is saying, यहाँ पे पौलुस कह रहा है, but you don't be drunk with wine. लेकिन तुम ऐसे मतवाले मत बनो दारू पीकर। Instead, be filled with the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। It is the infilling of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा आपके अंदर भरना चाहिए। When the apostles, the early church was there in the upper room, जब पहले की जो कलीसिया थी, जब ऊपर के कमरे में बनी हुई थी, they were waiting for the Holy वो Spirit. लोग रुके हुए थे, बने हुए थे जब तक पवित्र आत्मा आगमन नहीं They होगा। they don't know how they will receive it. वो नहीं जानते थे वो किस रीति में उस पवित्र आत्मा को They पाएंगे। don't know when they will receive वो it. नहीं जानते थे वो कब पाएंगे। But they are simply obedient to the word of God. लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए वहां पे बैठे थे। But the Spirit of God rested upon them. लेकिन पवित्र आत्मा आके उनके ऊपर आई। A mighty wind blew the whole room. एक तूफान आया और उस पूरे कमरे को भर दिया।
and they all been filled with the Holy Spirit, और सब लोग पवित्र आत्मा से भरे गए and they were speaking in different languages. और वो अन्य भाषाओं में बात कर They रहे are थे, proclaiming the glory of वो God, परमेश्वर की महिमा को बोल रहे थे and people of different nations hearing Jewish people speaking in their own known language. और अलग अलग देशों के लोग वहां पे मौजूद थे। वो यहूदी लोगों को अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा करते हुए वो लोग अचंभित हुए। It is not only in Acts chapter 2. सिर्फ प्रेरितों के दूसरे अध्याय में नहीं, In Acts chapter 10, प्रेरितों के 10वें अध्याय में Gentile community, अन्य जाति के लोग Peter was preaching. और पत्रस वहां पे प्रचार He कर is रहा not था। even preaching about the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार He नहीं कर never रहा, laid hands on them. उसने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा। But as he was preaching, लेकिन जैसे वो प्रचार कर रहा they have था been filled by the Holy तो Spirit. पवित्र आत्मा से वो भरे गए। So the first initial stages, तो पहली चीज ये है, we all can experience the infilling of the Holy Spirit. हम सब पवित्र आत्मा से भरे जा सकते I हैं। come from a CNI background. और मैं CNI बैकग्राउंड से I आता never हूँ। heard about the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना I नहीं, never knew anything about the gift of tongues. मैंने अन्य भाषाओं के बारे में कुछ सुना नहीं। After a Sunday service, लेकिन एक संडे की सभा के बाद they told, "Have you received the Holy Spirit?" उन्होंने पूछा, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? All that I know, okay, in the benediction, people used to say God the Father, Son, and the Holy Spirit. That's all I know. और इतनी में बात जानता था, जब बेनेडिक्शन होता था तो यीशु पिता और पवित्र आत्मा के बारे में बताई I गई never थी, knew anything. और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। On that particular day, I read this leper. If it is your will, let it happen to me. और उस दिन मैंने उस कोढ़ी रोगी के बारे में पढ़ा और वो प्रभु यीशु को कहता, अगर आपकी इच्छा है तो मेरे साथ वो हो। I prayed that prayer, तो मैंने वो प्रार्थना and I की went and stood there. और मैं वहां पे जाके खड़ा हुआ। When the preacher told, God is filling everyone, जब प्रचारक ने कहा कि परमेश्वर हर व्यक्ति को भर रहा है, I started speaking in a different tongue. तो मैं दूसरे अन्य भाषा में बात करने लगा I'm unable to control it. और मैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं ले पाया। God has taken control. परमेश्वर ने नियंत्रण ले लिया। It's a supernatural वो एक experience. अलौकिक अनुभव है। I tell you, that is the greatest experience a person can have. वो एक बहुत अलौकिक और एक महान अनुभव है जो कोई भी पा The सकता God है। who created the heavens and earth is going to come and be in you. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को की रचना की, वो आपके शरीर में आके बसने वाला है। That is the initial stage. वो जो है शुरुआती चीज है। But more than that, और उससे भी ज्यादा what happens? और क्या होगा? We need Holy Spirit on a regular basis. हमें रोज हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। Paul is writing to Roman church. रोमी की कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है, Chapter 8 verse 14, it says, "For those who are led by the Spirit of God are the sons of God. They are the children of God." 8:14. रोमियो 8:14 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा से संचलित है वे सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। So we need to led by the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। If you talk about Romans 6, 7 and 8, अगर रोमियो का 6, 7 और 8वां अध्याय हम देखेंगे, in the 7th chapter he was talking about how he is struggling in a spiritual life. और 7वें अध्याय में वो कह रहा है कैसे वो संघर्ष कर रहा है अपने आत्मिक जीवन में। Certain things I want to do, but I'm not doing that. कुछ चीजें मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता। Certain things I don't want to do, but I'm ending up doing it. कुछ चीजें मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन अंत में मैं वही कर देता हूं। Then he is literally saying, who can deliver me from the bondage of the sin? उसके बाद वो पूछता है, कौन मुझे इस पाप के बंधन से छुड़ा सकता है? And Romans chapter 8 verse 1 it says, और रोमियो का 8वां अध्याय पहला वचन में लिखा there is है, no condemnation for those who walk according to the Spirit. और उसमें लिखा है, जो लोग यीशु मसीह में संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडना नहीं रही है। So he's talking about walking in the Spirit. वो कह रहा है वो व्यक्ति जो पवित्र
पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, when we walk with जब हम God, परमेश्वर के साथ चलते हैं, He is our leader. तो वो हमारा अगुवा है, He leads us. वो हमारी अगुवाई करता It's है। a daily process. वो दिन भर दिन का एक प्रोसेस है। Every day we need God. हर दिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। He has to be the breath of our life. वो हमारे जीवन का श्वास होना Holy चाहिए। Spirit is the breath of our life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन का श्वास है। Only when we have Him, जब वो हमारे साथ we होगा, will be alive and active. तभी हम जीवित होंगे। We need Him. हमें उसकी जरूरत है। People of God, परमेश्वर के लोग long for this Holy Spirit. और हमेशा बने रहे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो, Eagerly expect Him every moment of your और life. रुके रहिए कि हर दिन हर समय वो आपके जीवन में बना रहे। Tell Him, without you, I won't be able to do anything. I can't live, God. उससे कहिए, पवित्र आत्मा से कहिए, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर, आपकी जरूरत है मुझे। In the same chapter, verse 6, it says, set your minds on the Spirit, because in Spirit there is life and peace. और उसी अध्याय 6 वचन में कहता है पौलुस कि आत्मा के ऊपर अपने मन को बना रहे, क्योंकि आत्मा में ही Peace. शांति है। So life and peace are there in God. जीवन और शांति परमेश्वर में ही है। If you need peace in your life, अगर आपको आपके जीवन में शांति की जरूरत if है, you need to know the real meaning of life, अगर आपको जीवन के सही मतलब को, सही मायने को जानना we है, need Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Without Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना we will be simply existing. हम ऐसे इस धरती के ऊपर जीते We रहेंगे। won't know why we are living. हम नहीं समझेंगे कि हम क्यों जी रहे हैं। Just for the sake of living, we will exist. हम जी रहे हैं ऐसे जैसे सब लोग जीते वैसे हम भी जिएंगे। But when God leads our life, लेकिन जब परमेश्वर हमारी अगुवाई I करेगा, tell you, people of God, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के every लोगों, day will be a glorious day. हर दिन एक महिमा भरा हुआ दिन होगा। Unexpected things will happen in your life. जो आपने सोची नहीं है वो चीजें आपके जीवन में होंगी। Great things will happen in your बड़ी बड़ी ministry. चीजें आपकी सेवकाई में होंगी। Why? क्यों? God is the one who is leading. क्योंकि you. परमेश्वर आपकी और आपकी सेवकाई की अगुवाई कर रहा In है। Galatians 5 verse 15 it says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. और गलातियों 5:15 में लिखा है कि 25. 25 गलातियों 5:25 में लिखा है, यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताए। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, we have to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरना है। We need to be led by the Holy हमें Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। Spirit filled life, एक आत्मा में भरा हुआ जीवन, a spirit led life. एक आत्मा की अगुवाई में बना हुआ जीवन God is offering it. परमेश्वर वो आपको प्रदान कर रहा है। Every day we can live in freedom. हर दिन हम स्वतंत्र होकर जी We सकते can live हैं, in peace. हम शांति में जी And सकते we हैं can expect great things from God. और बड़ी चीजें हम मांग सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से हो। So I'm going to talk about the 4 reasons we need Holy Spirit for our ministry. तो मैं 4 मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा इसकी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता जरूरत है। Why we need Holy Spirit in our हमें ministry? क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है हमारी सेवकाई में? The first point, पहली चीज, Holy Spirit is the one who illuminates the scriptures. पवित्र आत्मा ही है वो व्यक्ति जो शास्त्रों या वचनों को प्रकाशित करता है या हमें समझाता है। He is the one who can open our eyes to understand the scriptures. जब हम वचनों को पढ़ते हैं और हम समझते नहीं, तो पवित्र आत्मा ही है वो जो हमें वचनों को समझाता है, हमारी आंखों को खोलता है। When Jesus is talking about the coming Holy Spirit, when he was there on the earth, जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे और वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा का आगमन होगा, he is stating it like that. When the Holy Spirit comes to you, he will guide you into all truth. वो यूहन्ना 16:8-13 में प्रभु यीशु कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो पूरे सत्य में तुम्हें ले जाएगा या तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। So he is the one who has written the Bible. He is the author of God's word. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा इस बाइबल का लेखक है And he's there with you. और वो आपके साथ है। Imagine if somebody writes a book.
सोचो अगर कोई किताब लिखता है, when we read it, जब हम पढ़ते if हैं, we don't understand it, अगर हम समझ नहीं पाते what we will do immediately? तो हम क्या करेंगे? We can ask the author. हम उस लेखक से पूछ सकते He हैं। will tell you exactly in what situation he has वो written, लेखक आपको बता सकता है किस स्थिति में उसने इस किताब को लिखा है, what he is telling to understand from that passage. वो क्या लोगों को बताना या समझाना चाहता है। So he is there to make us understand the scriptures. और जब हम वचन पढ़ते तो पवित्र आत्मा जो उस किताब का लेखक है वो हमारे साथ है, जो समझाने के लिए। So people of God, परमेश्वर के लोगों, without Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना we won't be able to understand the truth. हम वचनों को, शास्त्रों को, सत्य को समझ नहीं पाएंगे। As leaders of the church, और कलीसिया के अगुवाई होने के नाते Paul writes to Timothy, पौलुस तिमोथी को लिखता है, we need to correctly divide the word of God. हमें परमेश्वर के वचनों को सही रीति में बांटना We है need to preach the undivided truth. और इस पूरे वचन को, पूरे शास्त्रों को लोगों के सामने हमें प्रचार करना The है। whole counsel of God, Paul preached to the whole Ephesians. परमेश्वर के सब सारे वचनों को लोगों के सामने लाना है और पौलुस ने एफिसियों के लोगों के सामने लाया। That is our responsibility. यही हमारा उत्तरदायित्व है। So I'm going to talk about the Levites in the period of Malachi. और मलाका के समय में लीवाइट लोगों के बारे में आपको बताना चाहता After हूं। going home, after this sermon, you can read this particular portion, Malachi chapter 2, verse 1 to 9. और ये प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप मलाकी 2:1 से 9 घर पे पढ़ सकते हो। So Paul is here, Malachi is comparing the Levites of his time and the Levites who are there in the time of Moses. और मलाकी जब दूसरा अध्याय 1 से 9 लिख रहा है, वो जो लीवाई लोग उसके समय में है और मूसा के समय में है, उनके सामने वो कंपेयर कर रहा है। So the term he uses is the covenant of Levi. और तभी वो बता रहा है लीवाई की वाचा। So God made a covenant with the Levites. और परमेश्वर ने लेवी के साथ एक वाचा बनाई। It's a covenant of peace and वो righteousness. लेवी की जो वाचा थी वो शांति और धार्मिकता की वाचा थी। If you go back to Numbers chapter 25, और गिनती 25वें अध्याय को अगर आप देखोगे, the Israelites were having an illegal relationship with the Moabite women. तो यहूदी लोग मोहबाइट के औरतों के साथ एक संबंध रख रहे थे। That's the time Phinehas came with a spear and he literally killed a couple. तभी लेवी के गोत्र का एक व्यक्ति फिनेहास ने आकर उस जोड़े को जो एक बुरा पाप कर रहा था उसे मार दिया। That is the time God made this covenant. उसी समय परमेश्वर ने लेवी के साथ ये वाचा बनाई। It is the covenant of peace and वो righteousness. वाचा है शांति और धार्मिकता की। There were 23,000 people killed on that day. उस दिन 23,000 लोगों को मारा गया। But God restored peace because of the act of Phinehas. लेकिन परमेश्वर ने शांति प्रदान की जब फिनेहास ने वो चीज की। He restored the righteousness of God's people. और परमेश्वर के लोगों की धार्मिकता उसने वापस लाई। So Malachi is comparing then leaders, saying that true instruction was there in their mouth. और मलाकी उन दिनों के लेवी के बारे में बता रहा है कि जो सही बातें या सही जो वो चीजें वो बोलते थे वो सही थे। No wrong was found in their lips. उनके मुख के ऊपर या उनके शब्दों में कभी भी कोई गलत बात नहीं थी। But during the period of his time, लेकिन मलाकी के समय he is telling to the Levites, वो लेवी को कह रहा है, you have caused many to stumble by your instructions. और आप जो सिखा रहे हो आपके शिक्षा से बहुत लोग गिर चुके हैं। People are looking for God's word through you. लोग आपकी ओर आ रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन में सिखा पाओ। When as we leaders, when we open our mouth, they are expecting God's word. हम अगुए होने के नाते जब हमारे मुंह को हम खोलते हैं तो लोग देखते हैं कब हम वचनों को सुनेंगे। But what was happening there? लेकिन उस समय क्या हो रहा था? Their instruction leading people away from God. वो जो लोगों को शिक्षा दे रहे थे उससे लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे। And God was literally angry about those और leaders. परमेश्वर उन अगुवाओं को देखकर बहुत गुस्से में था। And the term he uses, it's like unimaginable thing. और जो
जो शब्द वो कह रहा है वो हमारे समझ के बाहर है। In the temple there is cow dung. It's like literal animal shit is there. और मलाकी वहां पे क्या लिख रहा है कि मंदिर में वहां पे जो So the thing is, God is saying, I will throw that on your face. और वो कहता है वो जो गोबर है, भैंसों का गोबर या गाय का गोबर है, वो आपके ऊपर मैं फेंक दूंगा। So what he is telling here, और वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, once there was a true group of leaders. तो पहली बार एक समय था जब एक सही अगुवाए होते थे या लीडर्स होते थे, But during the time of Malachi, लेकिन मलाकी के समय God is saying, it is very difficult for me to find one. और बहुत मुश्किल है एक सही अगुवा मिलने के लिए। People of God, we are living in the end times. और हम अंत के दिनों में रुके हुए हैं। People will deviate from truth. और लोग सत्य से दूर चले जाएंगे। They want to hear the myth of this world. और वो इस संसार की झूठी बातों को सुनना चाहेंगे। But I tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता God हूँ, is trusting you परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखे हैं to teach the undivided truth. और उस वचनों को सिखाने के लिए, पूरे बाइबल के वचन को सिखाने के To लिए, preach righteousness. ताकि आप धार्मिकता का प्रचार करो, To bring real peace. ताकि सही स्वर्ग की शांति लोगों के जीवन में आ सके। When they will get to a true peace. और सही शांति उनके जीवन में कब आएगी? Only when they receive the truth. जब सत्य वो पाएंगे, सत्य को जानेंगे। The truth will set them free. सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। Years back, myself and Pastor Sheridan went to Punjab. We visited the Gurudwara. बहुत साल पहले पास्टर दीपक और पास्टर शेरिडन पंजाब गए थे, वहां के गुरुद्वारे के पास हो गए। People were there in a room. They say it's a room of peace. और वो गुरुद्वारे में जब वो गए, उन्होंने देखा कि वहां पे एक कमरा बना है और लोग उस कमरे को कहते हैं कि वो शांति का कमरा है। They thought when they go into that room, they will receive तो peace. लोग क्या सोच रहे थे कि उस कमरे में जब वो जाएंगे तो वो शांति को पाएंगे। But when you look at their faces, लेकिन जब उनके चेहरों को पास्टरों ने देखा, they don't have peace. उनके जीवन में शांति नहीं नजर आई। The minds are disturbed. उनका मन बहुत डिस्टर्ब है। The faces are losing joy. उनके चेहरे पे खुशी या आनंद नहीं थी। But true peace comes from God's word. लेकिन सही शांति परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के सत्य से हमें प्राप्त होती है। We are accountable for our preaching. और हम जो प्रचार करते हैं उसका लेखा जोखा एक दिन हमें देना होगा। Be careful when you preach the word. और ध्यान रखिए जब आप प्रचार करते हो, परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने लाते हो। James 3 is talking about that. याकूब 3 अध्याय उसके बारे में हमें बताता है। With the words, many have literally fallen. और वो कहता है कि बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं। But we have a greater accountability. We have to give account for every word that we speak. लेकिन हर शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है उसका लेखा जोखा हमें देना होगा। Without Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना we won't be able to understand God's word. हम परमेश्वर के वचन शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। Okay, the second point. दूसरी चीज, दूसरा कारण, Holy Spirit is a guide, a counselor. पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, सलाहकार है। He can guide us. वो हमारा मार्गदर्शन कर He सकता can है, counsel us. वो हमें सलाह दे सकता है। Psalm 32 verse 8. भजन संहिता 32:8 It says, वहां पे लिखा है, I will instruct you in the way you should go. वहां पे लिखा है, I will counsel you with my loving eye on you. वहां भजन संहिता 32:8 में लिखा है, प्रभु ये कहता है, मैं तेरी अगुवाई कर तुझे वह मार्ग सिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना चाहिए। मैं तुझे परामर्श दूंगा, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। Two words he is using here. दो चीजें वो बोल I रहा will है। instruct you. वो कह रहा है पहले वो तुझे मार्ग अगुवाई करेगा, I will counsel you. वो तुझे सलाह देगा। Instruction.
what to do and what not to do. Every moment of our life He will guide us. हमारे जीवन के हर स्थिति में, हर समय में, हर घंटे या क्षण में हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन करेगा, हमें समझाएगा, हमें सलाह देगा, हमें बताएगा। He will counsel us वो हमें सलाह देगा, because He is keeping His eye on us, His loving eye on you. उसका परामर्श हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि उसकी आंखें हमारे ऊपर है, उसकी आंखें आपके ऊपर है। We need God's guidance in our life. हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है हमारे जीवन में। So for this, we will meditate on the passage of Acts chapter 8, verse 26 to और 40. इसके लिए हम प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 के वचन को देखेंगे। This passage talks about the experience of Philip. ये भाग फिलिप के जीवन के बारे में बताता है। What he says, वो क्या कहता है? God is asking Philip, go to south, to the road Jerusalem to Gaza. और इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर फिलिपियों से कहता है कि जेरूशलेम की ओर जो जा रहा है रास्ता गाजा, वहां जाओ। Well, immediately when he reaches there, जब वो वहां पे पहुंचता है, do you see the chariot? तो परमेश्वर उससे बताता है, क्या तुम उस रथ को देख रहे हो? Go over and join the chariot. दौड़ो और उस रथ के में बैठ जाओ। Philip is running after the chariot. फिलिप उस रथ के पीछे दौड़ रहा है। Definitely Philip would have not known that eunuch is reading the book of Isaiah. और फिलिप नहीं जान पाता था कि कोई बैठा है और ईशाया के किताब को पढ़ रहा है। But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता So है। God takes the servant of God to the particular place where there is need. और परमेश्वर जानता है कि जरूरत कहाँ पे है, और परमेश्वर अपने दास को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उनकी जरूरत है। It is clear instruction. और वो बहुत ही क्लियर बात से मार्गदर्शन है। Go to south. और उस दक्षिण की ओर जाना। There is a road which goes from Jerusalem to Gaza. वहां पे आपको एक मार्ग मिलेगा जो यरूशलेम से गाजा का जो रास्ता है, Go there. वहां पे जाना। After going there, और वहां पे जाने के बाद do you see the chariot? क्या आप उस रथ को देख रहे हो? In that road there are many things would have been happening. उस रास्ते के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही But he is थी, pointing out to the chariot. लेकिन परमेश्वर दिखा रहा है, उस रथ को देखो। You go and join there. तुम जाओ और उस रथ के में बैठ जाओ। So after joining there, और रथ में बैठने के he बाद was able to save that eunuch. वो उस यूनुक को बचा सकता है। And that eunuch went to Ethiopia and started a church. That's और what history says. वो व्यक्ति, इतिहास हमें बताता है कि वो व्यक्ति इथियोपिया के देश में गया और वहां पे उसने कलीसिया की शुरुआत की। God can give us instruction. ओके। God can counsel us. और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दे सकता है, परमेश्वर हमें सलाह दे सकता है। I want to tell you one real incident happened with one of our missionaries. Actually, now he is no more. हमारे एक मिशनरी के साथ एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी वो इस संसार में नहीं रहे, लेकिन मैं आपको उस घटना को बताना I चाहता can't हूँ। forget that incident. मैं उस चीज को उस घटना को भूल नहीं सकता। This was happened in Kuppam in Andhra Pradesh. ये आंध्र प्रदेश के राज्य में कुप्पम नामक एक जगह पे हुआ। The missionary was praying there in his house. वहां पे वो मिशनरी अपने घर में प्रार्थना कर रहा And था। God asked him to go to this और direction. परमेश्वर ने उसे बताया कि तू इस ओर चला जा। And to that area he never went. और वहां पे वो कभी गया नहीं था। That's the first time he is going तो there. वहां पे वो पहली बार जा रहा है। And then God is literally leading to a street. और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन एक रास्ते की ओर ले जा रहा है उसे। And God is leading to a particular house. और एक पर्टिकुलर घर में उसे ले जा For रहा है। 5 minutes he knocked the door. 5 मिनट तक उसने उस दरवाजे के ऊपर खटखटाया। No one answered. किसी ने भी द्वार नहीं खोला। He thought, okay, I'm thinking something in my mind. उसने सोचा कि मैं खुद सोच के यहाँ पे आया। He wants to come back. फिर वहां से वो वापस आना चाहता But था। again the Holy Spirit is literally forcing him to knock the door. लेकिन पवित्र आत्मा उसे धक्का दे रहा है कि वापस उस दरवाजे के ऊपर खटखटाओ। When again he knocked the जब door, वापस उसने एक और बार दरवाजे के ऊपर a खटखटाया, person opened. तो एक व्यक्ति ने द्वार को खोला। She closed the door to commit suicide. उस स्त्री ने जो बहन जिसने दरवाजे को खोला था, उसने दरवाजे को बंद इसलिए किया था क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहती थी। This servant of God never knew what is happening in her. और ये परमेश्वर का दास जो था वो नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। But लेकिन he was led by the Spirit of God.
पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, He followed the instructions of God. उसने परमेश्वर के सलाह को और मार्गदर्शन को लिया। On that particular day, a person has been saved from death. उस दिन अगर वो व्यक्ति वहां पे नहीं पहुंचता वो परमेश्वर के दास को, तो उस औरत को बचा नहीं पाते थे। Be sensitive to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आवाज को सही रीति से सुने। He can speak to you. वो आपसे बात कर सकता He है, can instruct you. वो आपको सलाह दे सकता है। Sometimes it might seem to be foolish, कई बार हमें वो मूर्ख जैसी चीजें लगती है, but I tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, when you know that it is from जब God, आप जानते हो कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, you will not be ashamed. आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। Be led by the Holy पर Spirit. पवित्र आत्मा को आपके जीवन में अगुवाई करने दीजिए। Be sensitive to the counsel of God. परमेश्वर के सलाह को सुनिए, He will instruct you. वो आपको आपका मार्गदर्शन करेगा। So if you are not sensitive, अगर आप उसकी आवाज को सुन नहीं रहे हैं, if I am not sensitive, अगर मैं सुन नहीं रहा हूँ, I'll miss out on the glory of God. तो परमेश्वर की महिमा को मैं खो दूंगा। These kind of incidents can happen every time, anywhere and everywhere. अगर मैं संवेदनशील तरह से उसको नहीं सुनूंगा, तो उस परमेश्वर की महिमा को मैं खो दूंगा, और ये सारी चीजें कहीं पे भी हो सकती है। That's the second point that I want to leave with दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता you. था, Without God's instruction, परमेश्वर के सलाह के बिना we will be doing on our own. हम अपनी ताकत से करते रहेंगे। God wants to take us to one direction, अगर परमेश्वर किसी दूसरे रास्ते के ऊपर हमें ले जाना चाहता है, and we will be in one direction. और हम कहीं और चले जाएंगे, We need to know हमें जानना है where God is, परमेश्वर कहाँ ले जाना where चाहता है, God is leading us. परमेश्वर हमें कहाँ ले जाना So चाहता है। always be sensitive to the तो Holy Spirit. हमेशा संवेदनशील तरीके से परमेश्वर की आवाज को जाने, उसे सुने। My sheep will hear my voice. मेरी भेड़ें मेरे आवाज को सुनेंगी। You can hear his voice. आप उसकी आवाज को सुन सकते I हो, can hear his voice. मैं उसकी आवाज को सुन God सकता is हूँ। willing to speak. परमेश्वर हमसे बात करने के लिए तैयार है। Are you having a sensitive? क्या आपके अंदर Yes. वो संवेदनशीलता है कि आप सुनने के लिए तैयार हो, Listen from God. ताकि परमेश्वर की आवाज को सुन पाए? Always wait in the presence of God. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। The third aspect, तीसरी चीज, the main thing, main reason why we need Holy Spirit. तीसरा कारण और मुख्य कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा की जरूरत Holy है। Spirit is our motivator. पवित्र आत्मा हमारा प्रेरक है, यानी हमें प्रेरणा देता है। He can be the greatest motivator of our life. वो सबसे महान प्रेरक है जो हमें प्रेरणा देता है। At times in ministry, बहुत बार सेवकाई में we will be weary. और हम थक जाते We हैं, will lose interest. और हम इंटरेस्ट खो देते We हैं, will be depressed. और हम डिप्रेशन में चले जाते So हैं। all those things can happen ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, because the enemy is always fighting क्योंकि against us. दुश्मन हमारे साथ युद्ध कर रहा The है। society is against us. हमारा जो समुदाय हमारे खिलाफ है। Often our own people don't understand us, बहुत बार हमारे परिवार या रिश्तेदार के लोग हमें समझ नहीं but पाते, still we have to do लेकिन ministry. फिर भी हमें सेवकाई करनी है। How difficult it is. तो कितनी कठिन है सेवकाई। Do you know whether we will be able to overcome all those things क्या on our own? क्या आप जानते हो कि अपनी ताकत से हम इन सारी चीजों के ऊपर उभरेंगे? The greatest prophet Elijah was unable to do it. एलिया सबसे महान भविष्यवक्ता ये नहीं कर पाया, He struggled. वो संघर्षों से गुजरा। Who are we comparing to him? और हम कौन है उसके सामने? But if we have God, the Holy Spirit, लेकिन अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, He can motivate us. तो वो हमें प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता I है। want to talk about an incident happened after the redemption of Israel from Babylon. और एक घटना के बारे में बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस्राएल के लोग बाबिलोन से वापस इस्राएल में आए। Zerubbabel, Shealtiel, everyone is come back to Israel. जेरुब्बाबेल, शेलतियेल बाबिलोन से वापस यरूशलेम यानी इस्राएल में आए हुए। They laid the foundations. उन्होंने उस मंदिर God's foundation, temple, they मंदिर के नींव को डाला, there was opposition. और वहां पे लोग विरोध आया, They stopped building it. और उन्होंने बांधना बंद कर दिया। Used all the materials given by King Cyrus to build their own और houses. जब विरोध आया, उन्होंने मंदिर बांधना बंद कर दिया, और जो चीजें साइरस राजा ने उन्हें दी थी मंदिर बांधने के लिए,
उन चीजों को लेकर उन्होंने अपने घर को बांधा। Haggai and Zechariah came and encouraged them. हागाय भविष्यद्वक्ता और जकरया आया, उन्होंने उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप जाके करिए, They never had wood. लेकिन उनके पास लकड़ी नहीं थी। So God is saying, go to the mountain, bring the तो wood. परमेश्वर कह रहा है पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ और लकड़ी को काट के लाओ। They did a hard work, और उन्होंने बहुत मेहनत की, built the temple. उन्होंने मंदिर को There बांधा। was a mixed reaction. और दो लोगों में एक दूसरी वो लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे। Ezra chapter 3 verse 12, it talks about that. एजरा 3:12 में वो लिखा है, The old people who have seen the temple of Solomon, जो बूढ़े लोग थे, जो जिन्होंने सुलेमान के मंदिर को देखा था, who seeing the temple now they have built. जो अभी के मंदिर को देख रहे थे, Imagine what a comparison it is. वो सोच रहे थे Solomon's temple, stone and silver of same value. और सुलेमान के मंदिर में पत्थर और चांदी का मोल एक ही था। I don't know how much stone he used, how much silver he used. मैं नहीं जानता कि उसने कितना पत्थर इस्तेमाल किया और कितनी चांदी इस्तेमाल की मंदिर बांधने के लिए। The gold was everywhere in temple. और मंदिर के हर कोने में सोना लगा हुआ The था। glory of God, the Levites were, the priests were unable to stand in the presence of और God. लेवी के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह पा रहे The थे। whole area is filled with God's smoke. वो पूरे मंदिर में परमेश्वर की जो दुआ था, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी। They are able to see each other. वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। No, they are able to see. They are unable to see each other. इतना धुआं उस मंदिर में था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे The थे। glory of God filled that temple. परमेश्वर की महिमा ने सुलेमान के मंदिर को भर दिया। Now look at the temple of Haggai. लेकिन हागाय के समय में जो मंदिर उन्हें माना था, वो बूढ़े लोग देख रहे थे और बोल रहे थे ये कैसा मंदिर है। It's a small वो temple. छोटा सा मंदिर था। And God is asking them, और लेकिन परमेश्वर उनसे पूछ रहा है how it looks like. वो कैसे दिखता है। It's like God is asking them. It is inferior to Solomon's temple. परमेश्वर उनसे पूछ रहा और कह रहा है सुलेमान के मंदिर के सामने ये तो कुछ भी नहीं। It's more than inferiority. What he says, okay. Does it not seem to you like nothing? और वचनों में लिखा है, क्या आप देखते हो कि वो तो कुछ भी नहीं है मंदिर। God is asking. परमेश्वर उनसे पूछ रहा That's है, how it looks like, no? वैसे ही दिखता है ना ये मंदिर। The temple that you have built, जो मंदिर आपने बांधा है, you are unable to see that. It आप- looks like nothing. आप बूढ़े लोग जो हो, आप देख भी नहीं पाते हो और बोल रहे हो अरे ये तो कुछ भी नहीं सुलेमान के मंदिर You के can't सामने। even say it's a temple of God. और आप बोल भी नहीं सकते अरे ये परमेश्वर का मंदिर है। What he says, लेकिन वो कहता है my परमेश्वर, spirit which was there in the time of Egypt, वो कहता है जो मेरी आत्मा जो मिस्र के देश से आपके साथ थी, is there, remains among you. वो आपके बीच में यहाँ पे मौजूद है। So do not fear. तो आप डरिए मत। So people of God, that's the word I want to tell you. परमेश्वर के The अगुवान, spirit has to remain among us. आप डरिए मत। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा हमारे बीच होनी We चाहिए। don't need to fear about anything. हमें किसी चीज के बारे में डरने की जरूरत It नहीं है। might be opposition, वो विरोध हो, because they faced opposition. उनके वहां पे विरोध हुआ, The neighbors were against them. जो पड़ोसी लोग उनके ऊपर विरोध करने लगे। It is very difficult to maintain the unity of the Israelites. बहुत कठिन है इजरायली लोगों की एकत्रता को रखने के लिए। God is asking to be united. परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें एक बनना है। And what they have achieved, और उन्होंने it क्या looks like पाया? nothing. वो कुछ भी नहीं था। And God is telling, और परमेश्वर कह in रहा spite है of all your inferior things, इन सारे चीजों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, I tell you, I'm there with you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ You हूँ, don't need to fear. तुम्हें डरने की जरूरत That is the नहीं। word that we need. वो ही शब्द हमें चाहिए। Heaven and earth belongs to God. स्वर्ग और धरती परमेश्वर की So है। you and I can go boldly to the world. हम संसार के सामने जा You can सकते हैं। preach to the world. आप और मैं प्रचार कर सकते हैं। In spite of persecution, in spite of oppositions, in spite of our lack of finance, every aspect, I tell you, all that we need is God. परसिक्यूशन के बीच में
अगर हमारे पास पैसा ना हो तो, और किसी के भी बीच में हम जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकते, वचन को प्रचार करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें चाहिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा। You might be a lonely missionary. आप एक अकेले मिशनरी हो सकते हो, The pioneering work might be very difficult. और जो आपने शुरुआती काम शुरू किया है मिशनरी का, The finances that need for your ministry, आपको फाइनेंस या आर्थिक मदद की जरूरत you होगी, might not have fully. आपके पास वो पैसे नहीं होंगे, It doesn't matter. इसका कोई मायना नहीं रखता। Do not fear about the future. आप डरिए मत आपके भविष्य के बारे में सोचते Do हुए, not fear about the ministry. आप डरिए मत आपकी सेवकाई का क्या होगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, His spirit remains in you. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बनी हुई He है, is among us. वो हमारे बीच में है। That is the greatest blessing that we can have वो in our life. सबसे बड़ा आशीष है जो हम पा सकते हैं। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, do not lose hope. तो अपनी आशा को खोइए मत, Do not worry. आप चिंता मत I करिए। tell you, मैं आपको बताना चाहता there is हूँ, a promise awaiting एक for you. वादा आपके लिए है। This inferior house which they built जो ये घर आप देख रहे हो, जो उन्होंने बांधा, जो कुछ भी नहीं है, is going to receive the greatest glory. वो सबसे बड़ी महिमा को प्राप्त करेगा। One day it will happen. एक दिन वो होगा। So do not despise a humble beginning. तो जो आपने विनम्रता से शुरुआत की है, उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। Now you might be struggling. अभी आप संघर्ष करते You होंगे, might be doing things, but you would have not heard the fruit. आप चीजों को करते होंगे, लेकिन उसका फल आप नहीं देख पा रहे हो। Don't worry. आप चिंता मत कीजिए, The same ministry, वही सेवकाई, God can rebuild it, and it will be more glorious than the temple of Solomon. और परमेश्वर उसे उसी सेवकाई को बांध सकता है, और सुलेमान के मंदिर से भी बढ़कर महिमा उस सेवकाई में हो सकती है। God's glory will be revealed in you. परमेश्वर की महिमा आपके जरिए दर्शाई जाएगी। People can see that glory in your life. आपके जीवन में लोग उस महिमा को देख They will पाएंगे, experience it in your ministry. आपकी सेवकाई में उस महिमा को वो अनुभव कर पाएंगे, Because God is the ultimate source of everything. क्योंकि सारे चीजों का प्रावधान करने वाला परमेश्वर ही है। Silver and gold belongs to him. चांदी और सोना परमेश्वर का है, He can do it, वो कर सकता है, and he can build his church. और वो इस मंदिर को बांध He सकता said, है। I will build my church. उसने कहा कि मैं इस कलीसिया को बांधूंगा, He will build it. और वो जरूर आपकी कलीसिया को बांधेगा। So he is our greatest motivator. वो प्रभु Jesus is the great, Holy Spirit is the greatest motivator. पवित्र आत्मा सबसे बड़ा हमारा प्रेरक है या प्रेरणा देना वाला है। Many of you would have experienced this cloud of smoke in our ministry. आपके में से बहुत सारे लोगों ने इस धुएं को, महिमा के धुएं को आपने सेवकाई में आपने अनुभव किया होगा। This is not real. Somewhere happened once upon a time. ये एक बहुत दिनों पहले हुई बात नहीं है। We have experienced it. हमने इस पवित्र आत्मा के महिमा को अनुभव किया है, परमेश्वर की महिमा को अनुभव किया है। I tell you, मैं you can आपको still बताना experience चाहता it. हूँ, अभी भी परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर सकते हो। So all that we need in ministry is motivation, and I tell you, there is no one greater than the Holy Spirit. एक ही चीज हम सेवकाई में हमें जरूरत है, वो प्रेरणा की, प्रोत्साहन की, और पवित्र आत्मा से बढ़कर वो प्रेरणा और प्रोत्साहन और कोई हमें नहीं दे सकता है सेवकाई में। Go back to the Holy Spirit. वापस पवित्र आत्मा के पास जाइए, Speak to him about your उससे difficulties. बात करिए अपने सेवकाई के बारे में, And I tell you, he will give you a promise. और वो आपको वादा देगा। That promise will give you hope. वो वादा आपको आशा देगी, It will keep on pushing us to achieve और great वो things. हमें आगे ले जाते रहेगी जब तक उस विजय को हम पा लें। The last point. और आखिरी कारण, The Holy Spirit empowers us with the spiritual gifts. पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदानों से सशक्त करती है। When it talks about the Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit, जब हमें परमेश्वर के वरदानों के बारे में हम बात करते the हैं, church is always divided. तो हमेशा कलीसिया दो भागों में बटी हुई है। So all the previous 3 points we will say, everyone will agree to it. पहले के जो 3 पॉइंट हमने बताए, सब लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। Yeah, the word of God is हाँ, important. परमेश्वर का वचन जरूरी है, Guided by
the Holy Spirit, the God हाँ, is पर important. पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन जरूरी है। God is greatest motivator. Yeah, we need him. हाँ, परमेश्वर हमारा प्रेरणा या प्रोत्साहित करने वाला बहुत जरूरी है। But when it comes to the gifts of the Holy लेकिन Spirit, जब परमेश्वर की वरदानों के बारे में जब हम सोचते there हैं are divided opinions. तो दो भागों में कलीसिया बटी हुई है। That is what happened every time. ये हर समय में हर काल में हुआ है। But I want to tell you, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, read chapter 12, 13 and 14 of 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14 मैं आपको बता, after going home. आप जब आप घर जाओगे पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14वां अध्याय आप पढ़े, You can see a beautiful connectivity of those three आप chapters. एक उन तीन अध्यायों का एक खूबसूरत कनेक्टिविटी देख सकते हो। So I'm going to highlight those points. तो उन थोड़े पॉइंटों को मैं आपके सामने लाने वाला 1 हूँ। Corinthians 12 verse 7. पहला कुरिन्थियों 12 Now to 7वां each वचन। one, the manifestation of the Holy Spirit is given for common good. First Corinthians chapter 12 verse Verse 7. 7. पहला कुरिन्थियों 12 7वां अध्याय 7वां वचन। Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for common good. प्रत्येक व्यक्ति को सबके कल्याण के लिए आत्मा का प्रकाश मिलता है। Why God has given the gifts of the Holy Spirit? क्यों पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है? It is a common good for the church. वो सबके कल्याण के लिए, कलीसिया के कल्याण के लिए दिया गया है। So it is not for us. वो हमारे लिए नहीं, It is for the common good for every believer. वो हर व्यक्ति, हर विश्वासी के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। Okay, why we don't want to have that ministry or we don't agree with the ministry? क्यों हम उस पवित्र आत्मा के वरदानों को कभी-कभी स्वीकार नहीं A करते? servant of God portrays himself as though he is the super spiritual person. जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर का दास अपने आप को एक अलौकिक व्यक्ति समझता है और वही शक्तिशाली है, ऐसे लोगों को दर्शाता है। So they are misusing it. That's what we say. और हम बोलते हैं कि ये परमेश्वर के दास परमेश्वर के वरदानों को गलत रीति से इस्तेमाल कर We रहा don't है। know what are the motives they have. हम नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या मोटिव्स है, We have a correct motive. लेकिन हमारा मोटिव सही है। Our motive is to give the benefit for every person. हमारी सोच सही है। हम चाहते हैं कि सबको फायदा हो, Because if somebody needs a healing, क्योंकि अगर किसी को चंगाई की जरूरत and है, if we say today there is no healing, तो अगर हम कहें कि आज चंगाई हो नहीं सकती, we are restricting the Holy तो हम Spirit. पवित्र आत्मा को रुकाते हैं। If somebody needs a word of encouragement, अगर हम कहते हैं किसी को भी प्रोत्साहन की जरूरत and है, if we don't give it, अगर हम वो नहीं देते that person is a loser. तो वो व्यक्ति खो जाता है। If somebody needs a gift of tongues अगर for किसी the को prayer, अन्य भाषाओं की जरूरत है प्रार्थनाओं के लिए, they don't receive it. अगर वो प्राप्त नहीं करते, I tell you what is good in the church. तो उस कलीसिया में क्या अच्छाई है? So it is common purpose. The तो gift is given for a common वो purpose. हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, भलाई के लिए है। It has to benefit every member of the body of Christ. परमेश्वर के कलीसिया के, परमेश्वर के देह के हर व्यक्ति को वो फायदेमंद होना चाहिए। First, it has to be a local church, पहले आपकी जो लोकल कलीसिया and है you can extend this to the universal और church. पूरी कलीसिया को, पूरी संसार के विश्वासियों के सामने आप ये ला सकते हो। I tell you, it is for the benefit of the church. कलीसिया के फायदे के लिए ये है। So, and then he says, और उसके बाद वो कहते हैं, he's talking about different types of tongues, the gifts. और उसके बाद वो अन्य भाषाओं के बारे में बोलते हैं। After that, उसके बाद he is talking about two reactions towards the ministry. और वो कहता है कि दो तरह के लोग बात करते हैं इस सेवकाई के बारे में। In verse 15, 1 Corinthians chapter 15, chapter 12, verse 15 and 16. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 15 और 16 में लिखा है, If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, And again in verse 16, and if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the यदि body. कान कहे मैं आंख नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का भाग नहीं, It is within the body. तो परमेश्वर की देह में ही If we feel inferior, अगर हमें लगे कि हम तो किस चीज के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ काम के नहीं,
I can't do that. मैं तो ये कर नहीं सकता। Those people are great. अरे वो लोग तो बड़े हैं, How they are singing. वो लोग कैसे गाते हैं, They are playing music. वो कैसे गीत को यंत्रों को बजाते How they हैं, are preaching. वो कैसे किस रीति से प्रचार How they करते are हैं, counseling. वो कैसे लोगों को काउंसलिंग How करते they हैं, are leading. कैसे वो लोगों की अगुवाई करते हैं। No. I can't अरे do that. मैं तो ये सारी चीजें नहीं कर I'm सकता, not like them. और मैं उनकी तरह नहीं हूँ। Many times we compare ourselves with somebody and we will say, no, I can't do it. बहुत बार हम दूसरों को देखकर हमारे जीवन को कंपेयर करते हैं और कहते हैं अरे मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। I tell you, मैं आपको बताना that चाहता is हूँ, not from God, that is from devil. ये परमेश्वर, ये सोच परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से You है। are trusting your own ability. आप अपनी ताकत के अनुसार चलने को You are सोच not रहे हो, trusting the power of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हो, And God has placed you with a purpose in the body of और Christ. परमेश्वर ने आपको इस प्रभु की देह में एक उद्देश्य के साथ रखा है। I tell you, people of God, in this organization, no one should feel inferior. परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहूँ, इस संस्था में हम सब है, लेकिन किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति से छोटा है। We all are equal in the हम body of Christ. सब परमेश्वर के देह में समान है। We all have the gifts of the Holy हम Spirit. सबके पास पवित्र आत्मा के वरदान है। I tell you, do not say that I can't do it. और कभी भी ये मत कहिए कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। Comparing with everyone. जब दूसरों को देखकर आप कहते हो मैं उसके जैसे नहीं कर सकता, ऐसे कभी नहीं बोलना। Each body part is for a unique purpose. शरीर के हर भाग एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ बना हुआ है। Find out what is unique in you. आपके जीवन में क्या वो वरदान है, आप ढूंढिए। When you find that, जब आप उसे ढूंढेंगे you will know in what way you can be a blessing for the तो body. आप समझोगे कि परमेश्वर के देह को आप आशीष का पात्र कैसे बन सकते And हो। the second thing, what happens in the body of और Christ. दूसरी चीज परमेश्वर के देह में क्या होता Verse है, 21 and 22. 21वां वचन और 22वां वचन। हम Now the पढ़ेंगे। eye cannot say to the hand, I don't need you. आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। And then on verse 22 it says, those parts of the body that seems to be weaker are indispensable. वरना इसके विपरीत शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं And the head वे can- अधिक आवश्यक है। And the head cannot say to the feet, I don't need you. और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। No one can say that I don't need this. कोई भी नहीं कह सकता मुझे इस भाग का जरूरत नहीं है और उस भाग का जरूरत नहीं है। Today we say that. और बहुत बार हम ये कहते हैं, Many ministers say that. बहुत सारे सेवक ये कहते हैं I don't want this gift of the Holy Spirit. मुझे इस वरदान की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत नहीं And है। I tell you, there are Calvinists who speaks, it's like literally they mock the gifts of the और Holy मैं Spirit. आपको बताना चाहता हूँ, कैल्विन की शिक्षा लेने वाले जिनको कैल्विनिस्ट बुलाया जाता है, वो इस पवित्र आत्मा के वरदानों का मजाक उड़ाते हैं। I agree there is chaos in the charismatic मैं churches. आपको मैं मानता हूं कि कैरिस्मेटिक कलीसियाओं में बहुत बार ऐसे केओस होता है। There are a lot of things which is happening. I understand that. बहुत सारी चीजें उन कलीसिया में होती है, मैं समझता हूं, But that does not deny the work of the Holy Spirit. लेकिन ये वो जो चीजें करते हैं उनके सामने वो डिनाई नहीं करते कि पवित्र आत्मा के वरदान हम पा सकते हैं। Yesterday I read an article about Wayne Grudem's the systematic theology about miracles. और कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा वेन ग्रूडन की सिस्टमैटिक थियोलॉजी के बुक में से चमत्कारों के बारे में। One of the greatest theologian, everyone will be reading his book. सबसे बड़ा जो थियोलॉजियन है और सब लोग उसकी किताब को पढ़ते हैं। And I tell you, he writes about the miracles of the God. और वो Wayne Grudem, he is writing about gifts of the tongues. और वो अन्य भाषा के बारे में उस किताब में He लिखता is है talking about the miracles, the existence of God's और miracle. वो बताता है कि परमेश्वर के चमत्कार इस दिनों में भी हो सकता है। If we say, I don't need अगर this, हम कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं, you are stopping the blessing of the church. It is not you should do that. तो आप कलीसिया के ऊपर जो आशीष आने वाला है आप रुकावट बन रहे हो, आपको वो कभी नहीं करना चाहिए। There are sick people. बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, They come to us to pray. वो आते हमारे पास प्रार्थना कराने के Not लिए, every time they receive healing. हर बार वो चंगाई नहीं पाते। I
don't know why it is not. लेकिन मैं नहीं जानता कि वो हर बार चंगाई क्यों नहीं But पाते। I have seen लेकिन मैंने ये भी देखा है supernatural healing also. अलौकिक चमत्कार, अलौकिक चंगाई भी लोगों ने पाई है। What I have to do? मुझे क्या करना I है? have to be open. मुझे खुला रहना है। So always be open. हर दिन आप खुले रहिए। Do not say I can't do it, आप ऐसे मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, and do not say I don't need it. और ऐसे मत कहिए मुझे उसकी जरूरत नहीं। That's what Paul is saying. यही पौलुस हमें बता रहा है। Do not say that. कभी भी ये बोलिए मत। Be open to the Spirit of God. आप रहिए, खड़े रहिए पवित्र आत्मा के सामने। जो पवित्र आत्मा देना चाहता है वो ले। I tell you, 12th chapter, 31st verse, it says, और 12वां अध्याय 31वां वचन में लिखा है, it clearly says, वहां पे क्लियरली बताया गया है, eagerly desire the greater gifts. आप श्रेष्ठ दर वरदानों की धुन में रहे। So what is the greatest gift? सबसे श्रेष्ठ वरदान क्या The है? whole chapter of love. और सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ वरदान है, वो जो अध्याय है प्रेम के बारे में लिखा गया And है। what the 14th chapter verse 1 says, 14वां अध्याय पहला वचन क्या कहता है? follow the way of love और प्रेम के मार्ग के ऊपर चलो, and eagerly desire the spirit of gifts of the Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में मांग लो। 13th chapter is talking about love. 13वें अध्याय में वो प्रेम के बारे में कह रहा So है। what is the use of simply speaking in tongues? अगर आप सिर्फ अन्य भाषा में बोलोगे तो क्या फायदा? If no one understands, what is the अगर use? कोई समझ नहीं पाए तो क्या फायदा? So if you have faith to move the mountains, अगर आपके पास ताकत है कि आप पहाड़ों को हिला पाओ, if you have zeal to die for God, आपके पास अगर विश्वास है कि आप पहाड़ों को हिला पाओ, अगर आपके पास इतनी जील है, आप परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो, what happens then? तो क्या होगा? There is no love. तो प्रेम नहीं है, All your gifts are तो useless. आपके सारे वरदान कुछ फायदे के नहीं। Yeah, love and gifts of God has to operate simultaneously. हाँ, प्रेम और पवित्र आत्मा के वरदान साथ में चलने चाहिए। Now I'll come to the confusion part. और जो कंफ्यूजन है उसके बारे में मैं आपको There is बताऊंगा। charismatic chaos in the Pentecostal और churches. पेंटिकोस्टल कलीसिया में बहुत बार बहुत चीजें सही नहीं लगती। That is what happening in Corinth. It's not only now, it is then happening. कोरिन्थ की कलीसिया में उस समय भी वही हो रहा था। So that's why Paul is saying, इसलिए पौलुस बता रहा है, there is an order in the church. एक ऑर्डर होती है कलीसिया When में। to speak in tongues. कौन सा वो समय है अन्य भाषा में बात करने के लिए? Prophecy cannot be spoken by 4 person at one time. 4 लोग खड़े होकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। Gift of faith can be operated at the same time. और विश्वास का जो वरदान उसी समय नहीं हो सकता। So if we all have the gifts अगर हम सबके पास वो वरदान and है we all do it in the और church, एक साथ में कलीसिया में वरदानों का इस्तेमाल करें, there is no order. तो ऑर्डर नहीं रहता। There is कलीसिया में। confusion. तो वहां पे कंफ्यूजन होता There है, is chaos. तो वहां पे chaos होता है। Our God is not a God of confusion, हमारा जो परमेश्वर है वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, but of peace. लेकिन शांति का। So especially in the congregation of the Lord's people, there has to be peace. और परमेश्वर के लोगों के कांग्रेगेशन में शांति होना चाहिए। This is how we need to have the Spirit of God. इस रीति में हमारे पास परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए। So people of God, परमेश्वर के लोगों eager for greater gifts. तो हमेशा वो भूख या प्यास होनी चाहिए आपके अंदर If you कि have बड़े वरदान आप पाए। If you have the gift of tongues, अगर आपके पास अन्य भाषाओं का वरदान है, Paul says, pray for the तो interpretation. पौलुस कहता है उसकी समझ के वरदान को And he मांगिए। says, I want everyone to prophesy. और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति भविष्यवाणी करे। I don't know whether I can say that now. मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अभी वो कह सकता I don't हूँ। know how many of you are going to receive it with eagerness. मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग उस चीज को पा लेंगे। I encourage you to prophesy. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भविष्यवाणी करिए। That's what Paul says. वही पौलुस कहता है। So I think I can say that. इसलिए मैं भी वो कह सकता हूँ आपको। I'm including myself in मैं it. अपने आप को भी उसमें रख रहा हूँ। I want to experience the power of God. मैं परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करना चाहता हूँ। Whatever gifts God has given जो us, भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, it is not for us. वो हमारे लिए नहीं It है। is not to make us fame. वो हमें मशहूर बनाने के लिए It नहीं is है। not to earn money. वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। It is not to have authority or power over वो people. लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए नहीं है। But it is to be used for the benefit of the church लेकिन member. वो दिए गए हैं हर कलीसिया के विश्वासी के फायदे के लिए। Do not close it. उस वरदान को रोकिए मत।
with our intellectual mind, do not stop the work of the हमारे Holy Spirit. मन की बुद्धिमानी से हम पवित्र आत्मा के कार्य को रोक सकते In हैं। the worldly point of view, we might be intellectuals when we talk about that. हम संसार में हम बुद्धिमान हो सकते But in हैं, the sight of God, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख we are closing down the doors of God, the हम avenues of God. परमेश्वर के द्वारों को बंद करते जब हम सोचते वरदानों की जरूरत नहीं। So I want to end with this. तो इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाइए। This is the promise of the Father. ये पिता का वादा है आपके लिए। Luke chapter 11, 9 to 13. लूका का अध्याय लूका का 11वां अध्याय 9 से 13। Many of you are parents. बहुत सारे लोग आप माता पिता हो। Have you done any evil to your children? क्या कभी आपने अपने बच्चों के साथ कोई बुराई की है? Have you at least intend to do any क्या evil to कभी your आपने children? सोचा कि मैं मेरे बच्चों को बहुत बुरा करूंगा? I tell you, we will not do. हम कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। We want to do the ultimate best for मैं us. हम सबसे अच्छी चीज हमें बच्चों को देना चाहते हैं। How evil we are. कितने बुरे हम हैं, When we do that, लेकिन बुरे होने के बावजूद अगर हम हमारे बच्चों को अच्छाई करते Bible हैं, is asking, how much more will the तो heavenly बाइबल Father? हमसे पूछ रहा है कितना ज्यादा स्वर्गीय पिता हमारे साथ अच्छाई करेगा। When you ask for the Holy जब Spirit, आप पवित्र आत्मा को मांगोगे, I tell you, people of God, तो परमेश्वर के लोगों में आपको ask, बताना keep चाहता हूं, on asking. यहाँ पे लिखा है मांगो मांगते रहो It will be given to you. और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। Seek, keep on seeking, खोजो खोजते रहो and you will find. और तुम पाओगे। Knock, keep on knocking, खटखटाओ खटखटाते रहो and the door will be और open. द्वार खुल जाएंगे This जाएगा। passage is talks about the Holy Spirit. और ये जो भाग है वचनों का लूका 11:9 से 13 उसमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया It गया is है। the promise of the Father. वो पिता का वादा है आपके Jesus लिए। is the baptizer. प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला We है can be the recipient of the blessing. और हम उस आशीष के हकदार हो सकते हैं। I hope you will receive. और मैं आशा रखता हूँ आप उस पवित्र आत्मा को पाओगे। I tell you, you can see a difference in your ministry. तभी आप अपने सेवकाई में कुछ अलग देख पाओगे। How the 12 people who turned the world upside down. कैसे उन 12 शिष्यों ने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। We are a small group of people. हम एक छोटा सा एक ग्रुप है। When we join with the Holy जब हम Spirit, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं, I believe that we can turn India upside मैं down. विश्वास रखता हूँ हम भारत देश को उलट पुलट कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Angelo, हम pray and close. प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। Let's pray. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं आपके वचन के लिए, और आपने जो प्रभु यीशु के द्वारा जो बताया गया, जो आपने वादा किया, वो आपने पूरा किया है। पवित्र आत्मा वो वरदान हमें दिया गया है और त्रिज्ञा परमेश्वर में से वो व्यक्ति हमारे साथ बना हुआ है। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर व्यक्ति आपकी आवाज को सुन पाए, हम संवेदनशीलता से उस आवाज को सुन पाए, आपके उपस्थिति को समझे, जाने, आपके मार्गदर्शन को ले, वचनों को समझे, आपके वरदानों को, आपकी ताकत से हम सशक्त हो, ताकि सेवकाई आगे बढ़े, आपकी महिमा को हमारे जीवन में देख पाए, ताकि हमारे कलीसिया के विश्वासी वो फायदेमंद हो और परमेश्वर के देह को आशीष पाए। हम वैसे सेवक बनना चाहते हैं जो आपके अगुवाई में चले और आपकी सेवकाई को आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस भारत देश में हो और हर व्यक्ति, हर घुटना, हर जुबान का व्यक्ति, हर गोत्र का व्यक्ति, हर कबीले का व्यक्ति अपने घुटने को टेके और अपने जुबान से कहे, हर भाषा का व्यक्ति अपने जुबान से कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और अपने घुटनों को टेके। यही हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हर पास्टरों को, हमारी संस्था को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे ऊपर नियंत्रण लीजिए और हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए, अपनी ताकत से भरते हुए आगे ले जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में हमारी सेवकाई में बहुत बढ़ोतरी देख पाए और आपकी महिमा हो। हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।